Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ हम खास तौर से आपसे बातचीत किया करते हैं और आमंत्रित करते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवाल। आज भी आप चाहें तो हमें फोन करें और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करें। हमसे संपर्क करने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. First, the headlines. Two initial public offers to mop up over 2,500 crore rupees in the coming week. Foreign funds put in over 13,200 crore rupees in the domestic capital markets in June, and crude oil futures rise for the sixth straight week during last week. आने वाले सप्ताह में 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आने वाले हैं 2 आईपीओ। विदेशी फंड की ओर से भारतीय पूंजी बाजार में जून महीने में 13,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ और लगातार छठे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में जारी रही वृद्धि। And now for all the details. In the primary market, 2 initial public offerings from Clean Science and Technology and GR Infra projects are going to open in the coming week, mopping up some 2,500 crore rupees cumulatively. Clean Science and Technology's over 1,546 crore rupee public offer is entirely an offer for sale by existing promoters and other shareholders, priced between 880 and 900 rupees per share. GR Infra Projects public issue has a price band of 828 to 837 rupees a share, fetching 963 crore rupees. Both these offers will be open for public subscription on the 7th of July and will close on the 9th of July. हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस बीच मनोज। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम एक लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे हमें क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न मिल सके, तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड प्लीज बताइए। अच्छा सर, हर 3 महीने पे म्यूचुअल फंड से रिटर्न पाने के लिए आपके पास 2-3 विकल्प है। सबसे सुरक्षित विकल्प है शॉर्ट टर्म डेट फंड, जहां पे अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे पैसा नहीं निकालते तो आज के दिन वहां रिटर्न काफी कम मिल रहा है, लेकिन वहां आपके पूंजी में किसी बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। दूसरा विकल्प है आपके पास जहां पे थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है कि लंबे समय में आपको जो महंगाई है उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए, और लेकिन इसमें जोखिम है। इसमें यहाँ पे एक पूरे डेट फंड 100% डेट फंड की बजाय यहाँ ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। वो है जो इस तरह के फंड को पहले MIP कहा जाता था, आज इन्हें अग्रेसिव कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है। 15-20% डेट फिक्स्ड इनकम होता है, बाकी इक्विटी होता है, और इस तरह के कुछ फंड है जिनका प्रदर्शन पूरे
फुल मार्केट साइकिल में इनका अच्छा रहा है और ढेर सारे विकल्प नहीं है, कुछ ही ऐसे फंड है जो कि अच्छे कहे जाएंगे। Right. And Dhirendra, just to discuss our first story that we are carrying this evening, public offers, and that too, we are going to have two of them in this coming week and mopping up some 2,500 crore rupees. What would you say? Is the IPO market revving up despite the uncertainties and despite, the so-called third wave of COVID potentially which could come? What would you say? What is the status of the primary market at this juncture? No primary market, sustained performance of the secondary market is followed by a well-performing and promoter get up to raise as much money possible. And I think it has been on. The excitement in primary market has been on for a while. But I think one investor should look at it very objectively, because there are two things to primary issues. One is there is a possibility of many new kind of companies hitting market which was not available otherwise. So that is one way of looking at it, and many of those companies, for the first time, many of those companies will be coming to the market because they were not allowed to enter the Indian market till they start making profits, and exemption was made for the startups, and they are now hitting the market, and some of them are beginning to make profit, and some of them are far from making profit. So be careful. The other is that investing in primary market and being choosing a good stock or company is one thing. There is a great deal of lottery element. Whenever there is a boom in primary market, a lot of investors, it's entirely a matter of the demand and supply situation and the IPO. And that is a function of a lottery, whether you are lucky or not. So be careful, it amounts to keeping a lot of money liquid and investing in IPO and being lucky with it. Yeah. आइए चलें महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भरत। बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो IT सेक्टर वाला सेक्टोरल फंड कौन सा अच्छा होगा अभी इन्वेस्ट करने के लिए, या बैलेंस एडवांटेज फंड में अभी बेहतर समय करने के लिए? हमेशा मेरी आमतौर पे सलाह होती है कि किसी सेक्टर फंड में पैसा न लगाएं, लेकिन IT सेक्टर फंड ऐसा रहा है जिसमें कि अगर आपने कभी भी लगाया हो और 2-3 साल के लिए लगाया हो तो आपको नुकसान नहीं हुआ है। और IT सेक्टर फंड जो इसकी स्थिति थी शुरुआत में, उसकी तुलना में पिछले 15-20 साल में इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल गया है। यह एक मेन स्ट्रीम सेक्टर है और IT सेक्टर फंड का में पैसा लगाने का आप जब सेक्टर फंड में पैसा लगाते हैं तो उसका एक खास फायदा ये होता है कि आप उस फंड में, उस सेक्टर में के बारे में आपको जानकारी नहीं है लेकिन आप लगाना चाहते हैं। लेकिन आप किसी भी टेक्नोलॉजी फंड को देख ले तो उसमें 5 कंपनियां जो हैं अपने देश की, उनमें करीब 70-80% पैसा हर टेक्नोलॉजी फंड का उन्हीं 5-7 फंड कंपनियों में लगा हुआ है। तो मेरी सलाह होगी कि आपको वो भी उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि आपको IT सेक्टर फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि किसी भी तरह से आप लगाए उन्हीं 5-7 फंड में पैसा लगना है, 5-7 कंपनियों में पैसा लगना है, तो क्या ये सीधा भी लगाया जा सकता है? Right. Now let's go across to Santosh from Basti in Uttar Pradesh. Good evening, Santosh, and welcome to Market Mantra. हाँ, गुड इवनिंग सर। Go ahead, put your question. जी, मुझे ये जानना है कि ये अपना यहाँ मतलब इंडिया से मतलब US मार्केट में पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या तो कोई माध्यम है यहाँ से जो कोई ब्रोकर अगर कोई सर्विस देता हो ऐसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? राइट, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कह रहे हैं। एक चीज और जानना था जी, इसमें टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी अगर बाहर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर की मार्केट में US में? ठीक है। जी हाँ, बहुत सारे ब्रोकर्स अब आपको ये सुविधा देते हैं जिसमें कि आप ब्रोकरेज अकाउंट खोल करके आप वैसे ही शेयर खरीद सकते हैं जैसे भारतीय शेयर खरीदते हैं। इसमें एक चीज और जो कि आपको बारीकी से देखना होगा कि उस शेयर में लगाने के लिए आपको पहले रुपए से अपने बैंक से पैसा आप जब ट्रांसफर करते हैं, जो कि आमतौर पे आप करते हैं किसी ब्रोकर के यहाँ,
यहाँ पे ब्रोकर के यहाँ आप रुपए ट्रांसफर करने के बजाय आपको डॉलर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका बैंक सक्षम होना चाहिए कि आपके रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दे आसानी से और फिर आपको पैसा वहां पे ट्रांसफर करे। एक तो ये है। दूसरा, इसका टैक्स ट्रीटमेंट जैसे हमारे यहाँ डेट फंड का होता है कि 3 साल में जो अप्रिसिएशन हुआ उसका इंडेक्सेशन के बाद ये कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होता है, और तो 3 साल में जो भी अप्रिसिएशन हुआ उसको इंडेक्स करने के बाद जो मुनाफा हुआ उस पर टैक्स लगेगा। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि आदित्य बिरला और एक्सिस फंड ELHS आदित्य बिरला एंड एक्सिस में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अभी 2021 मार्च में कुछ यूनिट अनलॉक अभी हो रहे, तो 2-3 महीना हो गए, कुछ अनलॉक जो यूनिट हो गए, तो उसका मैं रिडम्पशन करना ठीक रहेगा क्या? ये मेरा सवाल है। तो रिडम्पशन के बाद उसमें टैक्सेशन कितना आ सकता है? जी, एक तो कि रिडम्पशन करना उचित रहेगा, बाजार चढ़ा हुआ है। अगर आपको इस पैसे की जरूरत है, अगर इस पैसे की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल रिडीम मत कीजिए। इक्विटी में लगा हुआ पैसा अगर आपको कई सालों तक जरूरत नहीं है, अगर अभी जरूरत है या अगले 1-1.5 साल 2 साल में भी जरूरत है तो जरूर पैसा निकाल लीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है तो पैसा पड़े रहने दीजिए। कोई लॉक इन से पैसा निकल जाने के बाद टैक्स सेविंग फंड में, ELSS फंड में कोई पाबंदी नहीं, कोई इस तरह की अनिवार्य नहीं है कि आप अपना पैसा निकालें। वो पैसा हमेशा के लिए पड़ा रह सकता है, और ये अच्छे फंड है। Right. Now let's go across to Amritsar, from where we have Prem Sagar joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। मैं अमृतसर जिले के गांव से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है? जी धीरेन्द्र जी, एक बेसिक सवाल। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है? अच्छा, 2-3 तरीका है, और अब बहुत आसान तरीका, और गांव में रह के भी ये निवेश करना संभव है। एक है कि आप ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जिसके जरिए आप एक उनका ऐप, अगर आपके पास और इस निवेश को करने के लिए वो ऐप डाउनलोड करने के बाद इस निवेश को करने के लिए आपके पास 2-3 चीज होना चाहिए। एक स्मार्टफोन हो, दूसरा आप अपने पैसे, आपका ऑनलाइन बैंक में एक्सेस हो, आप अपने बैंक से पैसा चेक के बजाय जो वेब एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस है, इंटरनेट के जरिए आप अपने बैंक को कह पाए कि वो पैसा कहाँ लगाना है, इसका एक्सेस हो। और तीसरा चीज कि आपके पास पैन और आधार कार्ड हो, जिसके जरिए बिना कहीं गए हुए आपके फोन के जरिए ये निवेश करना आज संभव है। तकनीक के माध्यम से सुविधाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, दूर दराज पहुंच रही हैं, गांव तक पहुंच रही हैं। इसकी जानकारी धीरेन्द्र जी आपको दे रहे हैं। हमारा जो बातचीत का सिलसिला है, हमारे फोन नंबर है, एक बार अपने श्रोताओं के लिए हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, 23314444, 23717106, 2371171117। हमारे साथ गाजियाबाद से हैं गौरव जी, अपना सवाल पूछें। बहुत बहुत आपका स्वागत। सर नमस्ते, मेरा सवाल है ये एक्सिस फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप, और तीसरा ये जो मीरा एसेट फोकस, इन तीनों में कौन सा फंड सबसे अच्छा चल रहा है? तीनों अच्छे ही चल रहा है, पर तीनों में आपका चॉइस कौन सी रहेगी? और दूसरा, हाउ टू मैनेज दैट फियर एंड ग्रीड फैक्टर? मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना सही है, या निकल के फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, वो स्ट्रेटेजी बेटर काम करेगी? थैंक यू। बड़ा मुश्किल है पैसा निकाल करके और फिर दोबारा लगाना। और आपने जो कहा कि ये जो एक्सिस का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप या मीरा एसेट का, बड़ा मुश्किल है इसको प्रायोरिटाइज करना। लेकिन अगर मुझे फिर भी करना पड़े तो मैं मीरा एसेट को सबसे ऊपर, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी को दूसरे नंबर पे, और एक्सिस का फ्लेक्सी कैप तीसरे नंबर पे होगा। पर तीनों में खास अंतर नहीं है। अगर आप ज्यादा रकम लगा रहे हैं तो तीनों में लगाइए, और
एक ऐसा समय था जब एक्सिस का फ्लेक्सी कैप हर तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद, जब बहुत सारे फंड स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी ये फंड अच्छा कर रहा था और आज भी इसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। और लेकिन दूसरों की तुलना में अभी कम है पिछले 1-1.5 साल में केवल देखा जाए तो। और निकालने के बाद पैसा लगाना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर बाजार में गिरावट हो जाए और आपको लगे कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं इसको टाइम करने में। बिल्कुल इसका बारे में मत सोचिए, और बल्कि अगर आप धीरे धीरे लगा रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो अपना SIP जरूर जारी रखिए और रोज रोज मत देखिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have RS Dahiya joining us on the program. Please turn down the volume of your radio set and put your question. Okay, sir. Sir, good evening to Market Mantra team. Yeah. Good evening. I have got two small questions to Dhirendra ji. Yeah. One is that I have investment in Nippon India Growth Fund Growth Direct Plan and Sundaram Select Mid Cap, now Mid Cap Plan Growth. Now these are about 10 to 12 years old you see investments. Now keeping in view to exit, they are not performing so well now. But keeping in view the capital gains, security transaction tax, stamp duty, right, and all other related issues, will it be worthwhile to exit and invest elsewhere? Yes, Dhirendra. Both the funds have their own time when they did well. Sundaram Mid Cap is a very old fund. Of late, it has not done well, and for a long period of time. But it did exceedingly well. It has done well in the initial run and also about 2 years back. And when it runs very speedily. It actually more than made up for the relative underperformance over a period of time. Likewise for the Nippon Fund. And, but at the same time, I think the transaction costs that you are mentioning or that you are referring, they are costs. But if you really make up a mind to consolidate your fund, or you are fully convinced that this is a fund which is not worth continuing, or if you will not put your new money into these funds, that is why you should not continue your old fund. So whatever it be, and they're not very substantial. It is meaningful. And the stamp duty is only when you invest. And after that, the STT and other things, definitely it is levied on mutual funds on a back-end basis. But despite the cost, I think, if you have to make a meaningful change, don't be hindered by, don't get swayed by the expense. You have to decide, take a cost. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप लाइन पर बने रहें। पहले हम आपको एक खबर देते हैं और उसके बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू पूंजी बाजार में जून महीने में 13,269 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल और मई महीने में एफपीआईज की ओर से पूंजी निकासी की गई थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून महीने में इक्विटी मार्केट में 17,215 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि 3,946 करोड़ रुपए की निकासी डेट सेगमेंट से की। इस तरह कुल निवेश 13,269 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इससे पहले विदेशी फंड की ओर से मई महीने में 2,666 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी, जबकि अप्रैल में 9,435 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। And let's continue taking phone calls. And joining us now is Sunil from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, very good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. सर, मेरा सवाल म्यूचुअल फंड से है। मैं पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए, और मैंने अभी तक किसी भी शेयर मार्केट में भी निवेश नहीं किया। तो जब भी मैं पराग पारिक का फंड कर रहा हूँ तो उसमें ऑनलाइन केवाईसी मांग रहा है। ऑनलाइन केवाईसी में भी पासबुक की फोटोकॉपी, चेकबुक, ऐसा कुछ मांग रहा है। तो ऐसा कोई तरीका है कि सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से ऑनलाइन केवाईसी हो जाए किसी स्पेसिफिक साइट पे? जी हाँ, बहुत सारे ये हो सकता है। पराग पारिक में सीधा ये केवाईसी करने का जरिया अलग हो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, ईटी मनी है, ग्रो है, जहाँ पे अगर आपके पास ये दो चीज है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, तो ये आपके लिए निवेश करना बहुत आसान है। बल्कि
मैंने कई बार किसी का बैठ करके किया है, तो वो 5-7 मिनट में इन दोनों चीजों से ही यहाँ पे KYC हो जाता है, जिसके बाद आप निवेश शुरू कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आप उनके जरिए भी अगर आप डायरेक्ट प्लान में पारंपरिक के लगा सकते हैं, तो आपको वही फंड के यूनिट्स मिल रहे हैं, बल्कि पारंपरिक फंड कंपनी से सीधा लेने के बजाय उनके जरिए आप लेंगे और वो उसी दाम पे उस डायरेक्ट प्लान में ही आपका निवेश होगा। Well, listeners, you're tuned in to our Sunday edition of Market Mantra, where we focus on mutual fund and related issues. And just to remind our phone numbers are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. और हमारे साथ कानपुर से इस बीच आज जुड़े हैं साकेत। साकेत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। Hello, Saket. Do we have you online? जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं साकेत सोनी कानपुर से। जी, मेरा सर से एक छोटा सा सवाल है कि कुछ म्यूचुअल फंड में एक लिमिट सेट होती है कि SIP आप इतने रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते, और उनका प्रदर्शन भी मार्केट में काफी अच्छा है, तो ये लिमिट क्यों सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा अमाउंट की SIP आप नहीं कर सकते? और दूसरा सवाल, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है उसका आगे कैसा भविष्य है? अभी तक तो उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, और इसी से मिलता जुलता कोई अगर और भी अपने इंडिया का फंड है तो वो सजेस्ट कर दूं। नहीं, एक तो ये बहुत फंड में नहीं हुआ है। बहुत सारे फंड जिन्हें लगता है कि उनमें बहुत पैसा आ चुका है, बड़ा पैसा आने से उनके फंड को चलाने में उन्हें असुविधा होगी, या एक साथ उतने पैसे को लगाना निवेशकों के लिए, जो उनके पुराने निवेशक है उनके लिए नुकसानदेह होगा। इस वजह से मिराई के फंड में 25,000 रुपए का की पाबंदी है कि उससे ज्यादा SIP के जरिए आप नहीं लगा सकते। तो ये फंड की इच्छा है कि वो कई फंड आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे फंड में पैसा लगाइए। ये फंड कह रहा है कि अभी आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, ये आपके लिए उचित नहीं है। और कभी कभी इस तरह का प्रावधान बहुत सारे कुछ फंड में किया गया है पहले भी। इस तरह के मिलते जुलते अच्छे फंड काफी सारे हैं। एक तो कि 25,000 रुपए का किसी आम आदमी के लिए अगर SIP करना है, तो एक तो ये जरिया है कि आप इस तरह से निवेश कीजिए। और इस तरह के और भी काफी सारे विकल्प हैं, जैसे पारंपरिक कहा जा रहा था, या कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, या अगर अलग तरीके का, अगर आपका सारा पैसा ग्रोथ फंड में ही लगा हुआ है तो इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी है, या आदित्य बिरला सनलाइफ का फ्लेक्सी कैप करीब मिलता जुलता प्रदर्शन पिछले 2-3 साल में 4 साल में दिखा है। आइए चलें कल्याण, वहां से हैं अनंत जी, स्वागत आपका। सवाल पूछिए। नमस्कार, मार्केट मंत्र के सभी टीम मेंबर्स को नमस्कार। नमस्ते। मेरे बेटी के शादी के लिए मैंने एक अमाउंट इक्विटी फंड में रखा था जी, और वो इवेंट 4 साल के बाद ड्यू है, मतलब वी आर प्लानिंग, तो अभी पूरा पैसा इक्विटी फंड से निकाल कर डेट फंड में शिफ्ट करूं, लिक्विड फंड में शिफ्ट करूं, या फिर STP के द्वारा एवरी ईयर करूं? मुझे लगता है कि STP के जरिए हर साल कीजिए, और अगले 3 साल में ही, बल्कि 1 साल पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, ताकि आपकी बेटी के विवाह का जो इंतजाम है वो बाजार पे निर्भर ना करे। तो आप एक तिहाई पैसा अभी निकाल लीजिए, 1/3 पैसा 1 साल के बाद निकाल दीजिए। और ये जरूरी सलाह है, क्योंकि हम पैसा धीरे धीरे लगाते हैं, लेकिन आखिरी दिन तक हम किसी इम्पोर्टेंट गोल के लिए पैसे का बाजार का पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि बाजार तो ऐसा ही है, उतार चढ़ाव रहेगा। इसका आप फायदा उठा चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में 1 साल पहले तक पैसा निकालने की तैयारी करें। Right, and before we take more calls, let's take a look at the oil scenario. Global crude oil prices posted its 6th straight weekly gain as the standoff between OPEC plus ministers over output extended negotiations to Monday. U.S. crude futures for August delivery ended the week at $75.16 per barrel. Brent crude futures for September closed the week at $76.17 per barrel. Crude futures in New York rose 1.5% for this week. Oil jumped more than 10% last month. आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर किरण। बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछे। नमस्ते सर, थैंक यू गिविंग एन अपॉर्चुनिटी।
सर एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें अगर एक लमसम डालें तो नेक्स्ट 5 इयर्स में 10% CAGR रिटर्न मिल सकता है क्या? पता नहीं, शायद मिल जाए, लेकिन आमतौर पे कुछ तो एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आप जो धीरे धीरे पैसा इक्विटी में लगाने का जो नियम है उसका कारण ये है, हालांकि ये कंजर्वेटिव तरीके से चलाया जाने वाला फंड है, लेकिन तब भी 5-6 महीने में, क्योंकि निवेशकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा लगाने के तुरंत बाद अगर भारी गिरावट हो तो आपके लिए ये बहुत ही निराशाजनक होती है और आपके लिए ये बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तो SIP जरूर ना करें, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप एवरेज कर लें, क्योंकि आप एक तो बहुत साल के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं, 5 साल का ही है। और ऐसा देखा गया है कि कई बार आप देखेंगे कि बाजार 5 साल की अवधि में, अगर आपने बाजार का शिखर अभी केवल कुछ समय पार करने के बाद हमें पता चलता है कि बाजार का वो पीक था जिसपे आपने लगाया। अगर किसी ने जनवरी 2008 में अगर पैसा लगाया होता तो जनवरी 2013 तक आपका पैसा ब्रेक इवन नहीं किया होगा बहुत सारी इक्विटी फंड में। Yeah, and we are talking about redemptions. Dhirendra, what would you say? People are talking now that markets are at an all-time high, 52,000 and above for the Sensex, and also it's been a secular run, mid cap, small cap also doing well. So all these funds have had wonderful gains. Would you advise people to encash the gains right now and maybe wait for another opportunity in the next 2 to 3 months to re-enter the market through mutual funds? No, I would not do that, because if anybody would have done it in the last 1.5 years, yeah, with a big opportunity, would have regretted, and ever since then the market has gone up quite substantially. In fact, the sharpest run. I would say there are 2 things to follow. One is that if you are investing for a goal and the money is ready, take your money out. But that is a goal-oriented decision. And the other is that work on an asset allocation plan. If you have 20%, 30%, or half of your money should be in equity, because of what has happened in the market in the last 1.5 years, there is a possibility that 50% would have become 65%. Move your money 15%, move your as much money so that your remaining, once you have made these changes, taking money out from equity, putting it in fixed income, it becomes 50-50 again. So you will be investing, but you will be methodically taking money out, and if the market corrects, then you should make it 50-50 again by buying cheap. The whole thing is having some framework whereby you are investing while the market gets cheap or there is a correction, and investing out of equity or taking your money off equity when it has gone up dramatically. यहाँ पर हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ जुड़े हैं, लेकिन अब हम आपसे बस आग्रह करेंगे कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगले सप्ताह हमसे अवश्य कार्यक्रम में मिलिए। मुंबई से हमारे साथ हैं राव, और उसके अलावा एक और श्रोता फोन लाइन पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो समय का अभाव है उसमें हम आपको अपने साथ अब समय नहीं दे सकेंगे। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। अंत में चलते चलते एक और खबर। देश में जून महीने में रियल टाइम पावर मार्केट में कुल बिक्री पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 3 गुना बढ़कर 1,726 मिलियन यूनिट पर पहुंच गई। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को वास्तविक डिलीवरी से 1 घंटा पहले तक ऊर्जा खरीदने की अनुमति होती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। रियल टाइम पावर मार्केट की स्थापना पिछले वर्ष जून में की गई थी, और भारतीय ऊर्जा विनिमय संस्थान IEX के अनुसार पहले महीने 515 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई थी। And before we close, a quick look at the top stories. 2 initial public offers to mop up over 2,500 crore rupees in the coming week. Foreign funds put in over 13,200 crore rupees in the domestic capital markets in June, and crude oil futures rise for the 6th straight week during last week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye.